Good afternoon to all of you. Today I am starting the next part. As you know, in our model, there are total five models we have in our course. First model that was general aspect, how to draw the structure of a molecule, how to generate the different conformations of the molecule. Okay, what are the various ways by which you can save your molecular structure into SDF file, mol file, PDB file format, or what are the different file extensions which you can use to analyze your molecule. Okay, in the second model, it was based on a ligand based drug design, and in ligand based drug design, we have seen two approaches. First is a QSAR modeling, quantitative structure activity relationship, and in QSAR model, we have seen what are the various ways or what are the steps first of all involved in a QSAR model development, how to calculate the descriptor for the structures which you know. You can also compute or design a model that is a mathematical equation. You can validate the stability, or you can validate the robustness of this mathematical model by using various parameters that was governed by OECD guidelines. You can use this QSAR model to evaluate or to find out the IC50 value, PIC50 value of any unknown structures. We've seen as one more approach in a ligand-based drug design, that is a pharmacophore modeling. In the pharmacophore modeling, the lecture was covered by Dr. Ajas Nani ma'am, and you know the pharmacophore model covers certain pharmacophoric features. It may be a hydrophobic features, it may be a anions, it may be a cations. What is the distance between the two features? What is the angle of location of different features? So all that composite your pharmacophore feature, and this pharmacophore feature is considered to be a very essential in executing any biological activity or pharmacological activity. So with the help of pharmacophore modeling, you can also design a new molecule which have that particular pharmacophore feature. You can search the existing molecule in a various databases containing that particular pharmacophore feature, so that you can go for repurposing of your molecule. Okay, remdesivir is one of the molecule, that was not actually used for the corona, that was not invented for the corona, but it was observed that the remdesivir contains a certain pharmacophoric feature which is required to inhibit that COVID virus. So that is how the repurposing of the remdesivir started, and it was utilized. You know how much it is utilized in Indian hospitals, okay, for the treatment of COVID-19. So right now we are entering in a module 3. Now what is this module 3 is all about? It is a structure based drug design. Although you have entered in a module 3 in the last Saturday only, where the introduction lecture again delivered by Dr. Ajas Nani ma'am, where you might be have seen what are the various approaches in a structure based drug design. And one of the approaches in a structure based drug design is a molecular docking. You can see the two paradigms of the drug design, LBDD and SBDD. And in SBDD, what is used? We have a structure. We have a structure of what? We have a structure of a protein. We know the structure of a means target. There are two words which is used for that structure: structure of a protein or the structure of a target. It might be a nucleic acid, can also be a target. It is not always the proteins or enzymes are only the target for the molecular docking. It may be a nucleic acid, which can also be a target for your molecular docking. So you know the structure, you know the three-dimensional structure, you know each and every amino acid constrained in that particular structure of the protein, you know each and every nucleotide sequence and presence of a nucleotide arrangement in that structure of a DNA. Why? Because the sequence of amino acid that will going to decide the stability of a structure. The sequence of amino acid that will going to decide the conformational orientation of the protein. And you know, if protein are denatured, then they are inactive. So we have to find out what is the actual structure of a protein. So when you know the structure of a protein, or when you know the structure of a nucleic acid, or when you know the structure of your target molecule,
then only you can proceed with the structure based drug design approach. If you don't know the structure of a target, you cannot utilize this method. Whereas what was the advantage of LBDD approach? If suppose you have any one molecule, a ligand molecule with known structure, you can use that ligand molecule to design a novel new other ligand. Whereas in SBDD, you must know structure of a target. Okay, so these features are utilized in SBDD. And what are the approaches in SBDD? One is homology modeling that we are about to study in upcoming lectures. Molecular docking that we are going to see today. Pharmacophore modeling, it is a hybrid approach actually, both. Pharmacophore modeling utilize the pure LBDD approach also, or pharmacophore modeling can also be used by using SBDD approach also. Okay, and in advance, there is one more approach which is called as a molecular dynamic study. So these are the four I represent approaches in SBDD. Now in that, we are about to start what? Molecular docking. Again, I am saying molecular docking is a vast area. We are just going to touch the basics of the molecular docking in our course, because there are so many things which you have to go in detail about the molecular docking. Okay, so first of all, in today's lecture we'll see what are this docking, what are different types of a molecular docking, and specifically saying molecular docking. One more word you can use, protein docking, that is a different. Okay, we are going to learn only what? Molecular docking. So what is docking first of all? So you can see the slide. क्या दिख रहा है आपको? दो चीजें हैं, एक येलो कलर की और एक ब्लू कलर. येलो कलर रिप्रेजेंट योर एंजाइम. एंजाइम प्रोटीन होते हैं. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. इट मे बी अ टारगेट इन फॉर्म ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड. मतलब येलो कलर रिप्रेजेंट योर लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड. ब्लू कलर रिप्रेजेंट व्हाट? Substrate. Now you can see what is happening. The substrate is interlocking with that large molecule of enzyme. How it is possible? This interlock is possible. How it is possible? First of all, you can see the cavity of that enzyme. The enzyme cavity contain a V-shape orientation or V-shape structure is there, and the substrate is also having a V-shape orientation, right? So this V-shaped cavity can accommodate your V-shape or triangular shape substrate into this cavity, and this is how the substrate has a probability to get interlocked into the structure of a enzyme. If suppose your structure get interlocked into this structure of an enzyme, then what will happen? It blocks certain active sites, it blocks certain orientation of a protein. And if the orientation or the conformational changes of a protein are inhibited, so what will happen? एक्टिविटी बंद हो जाएंगी. वेरी सिंपल है. आप लोग चेयर पे बैठे हुए सीट बेल्ट लगा दी, व्हाट विल हैपन? सीट बेल्ट लगा दी तो मूवमेंट प्रॉब्लम होंगी. मैं बोलूंगा वॉक विथ योर राइट पोस्चर. इज इट पॉसिबल फॉर यू? Might be difficult. You may able to walk, but it will be difficult for you. Same happens with the enzyme. If the enzymes are blocked in their active site, what will happen? Their activity will change. Might be it will slow down, might be it will completely block. Okay, and we are hoping that our molecule, our medicinal compound somewhere inhibit enzyme activity, है ना? अगर आपको कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करना है तो आपको कॉक्स 2 इनहिबिटर चाहिए. आपको एस एंजाइम को इनहिबिट करना है, एस इनहिबिटर चाहिए. सिमिलरली आप कोई एंजाइम आप ले लो तो उस एंजाइम को हम क्या निकालते हैं? इनहिबिटर निकालते हैं, माओ इनहिबिटर निकालते हैं, है ना? हर जगह पे हम क्या सोच रहे हैं फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट में? इट इज द एंजाइम विच इज हाईली एक्टिव एंड वी नीड टू सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ दैट एंजाइम. बहुत बार तो हम यही सोचते हैं. या समटाइम्स वी ऑल्सो थिंक दैट नहीं ये एंजाइम जो ब्लॉक हो रहा है इसको रोकना है. हाँ, ऐसा भी होता है बहुत बार. सो दैट इज व्हाट द मॉलिक्यूलर डॉकिंग. यानी हम एक्चुअली प्रैक्टिकल फार्माकोलॉजिकल एनिमल पे नहीं कर रहे. हम एंजाइम्स के ऊपर एक्चुअली वर्क नहीं कर रहे. हम ये सारा वर्क कहाँ पे कर रहे हैं?
we are working on a computers, we are working on our in silico technique. In silico इसलिए चिप पे काम कर रहे हैं, है ना. चिप्स किसके बन के रहती है, कंप्यूटर की चिप सिलिको, इसलिए बोला जाता है वो कौन सी एक्टिविटी है, इन सिलिको एक्टिविटी. So we are working in silico. So molecular docking is nothing but what? It is a study how two molecules. Now in this structure you can see this is a two molecule, one is enzyme, another is a substrate. It is not always so. Protein docking भी किया जा सकता है. So it might be a interlocking between the two proteins. क्योंकि जो antibodies रहते हैं, है ना, जो रितुक्सिमैब की बात करते हैं या टोक्लिक्सुमैब जो बात कर रहे हैं, ये क्या लिगेंड से, क्या ये तो एंटीबॉडीज हैं. तो एंटीबॉडीज जाके बॉडी में एक्शन कर रहे हैं, मतलब दे आर इनहिबिटिंग सर्टेन एंजाइम्स टारगेट्स. तो ये प्रोटीन प्रोटीन भी डॉकिंग आप चेक कर सकते हैं. सो द मैचिंग और डॉकिंग ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स दैट वी हैव टू चेक by computational algorithms, computational software, and that we call it as a simple docking. ठीक है. तो ये जैसे एक जनरल था, यही चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं. प्रोटीन ऐसा दिखता है हमारा, ठीक है, प्रोटीन, और ये हमारा लिगेंड है जो कि मॉलिक्यूल हो सकता है. हम डॉकिंग करके चेक करते हैं कि डॉकिंग कितना फिट हो रहा है, फिटिंग कितना अच्छा है ना. फिटिंग अच्छा है इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो गया. किसका कॉम्प्लेक्स? प्रोटीन और लिगेंड का कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो गया. मतलब प्रोटीन अपना नेचुरल फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा. अगर ये डॉकिंग होने के बाद कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है, इसका मतलब क्या हो सकता है, कुछ समय के लिए वो उसने डॉक किया होगा, उसके बाद वो निकल जाएगा और अपना प्रोटीन अपना काम करना चालू कर देगा. तो इसलिए कभी कुछ ड्रग ऐसे देते हैं शॉर्ट टर्म एक्टिंग, कुछ ड्रग कैसे देते हैं मीडियम टर्म एक्टिंग, कुछ ड्रग कैसे देते हैं लॉन्ग टर्म एक्टिंग. ये डिफरेंस क्यों आता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म? वन ऑफ द रीजन माइट बी दिस कि वो जो लिगेंड है वो प्रोटीन के साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है. तो प्रोटीन काफी देर तक क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है. यू नो माइस्थेनिया ग्रेविस. क्या होता है माइस्थेनिया ग्रेविस? इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जहां पे हमारे बॉडी के एंटीबॉडीज हमारे ही सेल्स के अगेंस्ट में वर्क करना चालू करते हैं. और वो क्या शॉर्ट टर्म डिजीज है क्या माइस्थेनिया ग्रेविस? लॉन्ग टर्म डिजीज है ना. तो उसको रोकने का तरीका क्या है? एक तो हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम को कम करो, है ना. इम्यूनो सप्रेसेंट दिए जाते हैं, इम्यून सिस्टम को कम करो. इम्यूनो सप्रेसेंट से क्या होगा, वो डिटेक्शन नहीं हो पाएगा और इस तरीके से बच सकते हैं. ट्रीटमेंट इज डिफरेंट. लेकिन जो कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स रहते हैं वो भी तो ऐसे ही काम करते हैं, रिसेप्टर को जाके क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं. शॉर्ट टर्म ब्लॉक, लॉन्ग टर्म ब्लॉक. शॉर्ट टर्म हुआ तो अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म हो गया तो बुरी बात हो जाएगी, पॉइजनिंग हो सकता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग आपने सुना है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. सो होप्स आपको बेसिक समझ में आएगा व्हाट इज मॉलिक्यूलर डॉकिंग. अब एक्चुअली होता क्या है डॉकिंग में, ये चार्ट में थोड़ा सा एक एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि सपोज यू हैव व्हाट अ लिगेंड मॉलिक्यूल. यू कैन सी दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ लिगेंड. Initially what the software does, software generates the various conformations for the ligand. आपको पता है अब कन्फर्मर्स क्या होते हैं, है ना. तो एक ही लिगेंड के बहुत सारे कन्फर्मर्स हो सकते हैं. जैसे अगर स्टीरियो केमिस्ट्री में हम बोलते हैं आइसोमर्स कैसे पहचानेंगे, तो इट इज बाय रेशियो ऑफ 2 raised to power n. n इज व्हाट नंबर ऑफ कायरल सेंटर. तो जितने कायरल सेंटर उतने आइसोमर. जैसे ग्लूकोज कितने हैं, 16. ग्लूकोज के 16 आइसोमर्स हैं, तो ये 16 कन्फर्मर्स जनरेट करेगा. ऐसा एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट सॉफ्टवेयर इज डूइंग व्हाट, इट इज जनरेटिंग अ वेरियस कन्फर्मर्स फॉर द लिगेंड मॉलिक्यूल. यू हैव अ वन टारगेट प्रोटीन विद द नेचुरल बाउंड लिगेंड. ठीक है, एक प्रोटीन है उसके साथ एक रेड कलर का क्या दिया हुआ है, एक और लिगेंड दिया है, लेकिन ये लिगेंड कैसा है, नेचुरली बाउंड है. ठीक है, ये बाउंड है, इसका मतलब प्रोटीन इस पर्टिकुलर रेड कलर के मॉलिक्यूल के साथ काफी ज्यादा स्टेबल है. अब जब डॉकिंग किया जाता है तो डॉकिंग में सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को हटाया जाता है. हम बाद में देखेंगे कि जब हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो बहुत सी बार नेचुरली बाउंड लिगेंड एसोसिएटेड रहता है प्रोटीन स्ट्रक्चर में. तो डॉकिंग करने से पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव दिस नेचुरली बाउंड लिगेंड. उसके बाद ही डॉकिंग करना है, क्योंकि डॉकिंग में हमें क्या करना है,
हमने चेक करना है कि ये जो ब्लैक कलर का लिगेंड है वो यहाँ पे जाके ज्वाइंट होता है क्या नहीं, तो पहले तो जगह तो खाली करनी पड़ेगी, इसको हटाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उसको जो डिफरेंट कन्फर्मर्स है, अभी इस केस में 3 कन्फर्मर है, वो तीनों कन्फर्मर को यहाँ जाके इस कैविटी में चेक करते हैं फिटिंग कैसा फिट हो रहा है, कौन सा कन्फर्मर ज्यादा अच्छे से फिट हो रहा है ना। और फिटिंग करने के बाद पता चला कि सपोज दिस इज दैट कन्फर्मर जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब कैसे स्टेबल चेक करेंगे, इन केस ऑफ द केमिस्ट्री स्टेबिलिटी इज व्हाट, लोअर द एनर्जी ऑफ द सिस्टम हायर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो मतलब हमने 3 कॉम्प्लेक्स बनाए होंगे, पहले कन्फर्मर के साथ, दूसरे कन्फर्मर के साथ, तीसरे कन्फर्मर के साथ, तीनों को फिट किया होगा। और फिट करने के बाद हमने क्या चेक की होंगी, एनर्जी चेक की होंगी। अगर जिस कॉम्प्लेक्स की एनर्जी सबसे लो है, इसका मतलब क्या, वो सबसे स्टेबल कन्फर्मर है, और वही कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लास्ट में आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो दिस कौन सा कलर बोलेंगे आप, मेरे हिसाब से थोड़ा सा आसमानी कलर है ना, लड़कियां अच्छे से कलर बताती है, स्काई ब्लू कलर, ठीक है। तो स्काई ब्लू कलर अच्छी, देखो हर एक की ना परसेप्शन अलग रहती है, इसलिए बोलते हैं हम लोग दुनिया में हर किसी को समान नहीं देखते, ऊंच नीच का भेदभाव है ना, सब चीजें ये यहीं से आंखों से ही शुरू होती है। तो इसीलिए बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन करना चालू कर देते हैं, किसी को स्काई ब्लू दिखता है, किसी को ग्रीन दिखता है, किसी को अलग दिखता है, वॉट एवर, सबका परसेप्शन है। मेरा कहना क्या है, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी यानी किस बेसिस पे, लो इज द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी, और इसी बेसिस पे चेक किया जाता है फिटिंग एनालिसिस। तो बेसिक्स में मॉलिक्यूलर डॉकिंग में ऐसा ही होता है, यू हैव अ लिगेंड, यू हैव अ प्रोटीन, दोनों को फिट करके देखो, फिट करने के बाद लोएस्ट एनर्जी किस लिगेंड के साथ में है, वो सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स, बराबर, बेसिकली ऐसा बोल दिया जाएगा, दैट इज व्हाट द डॉकिंग। तो ये सब चेक करने के लिए हमारे पास में क्या रहते हैं, सॉफ्टवेयर रहता है। We have a software to generate the conformer. We have a software to compute this complex stability. We have a software to find out interaction profile, कैसे interaction हो रहा है, कौन से ग्रुप कहाँ लगे हुए हैं, तो ये सब चीजें हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग में चेक करते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अभी, तो बेसिकली आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है डॉकिंग के अंदर। नाउ द टाइप्स ऑफ डॉकिंग, बेसिकली सबसे पहला बेसिक डॉकिंग आपको दिखाई देगा, वो कौन सा डॉकिंग है, रिजिड डॉकिंग। नाम से समझ में आ रहा है रिजिड, हम भी वैसे ही रहते हैं, हमारी लाइफ में रिजिड रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, पीछे वाला कितना भी हॉर्न बजा दे, हमारी गाड़ी हमारे हिसाब से चलेगी, ऐसे ही होता है रिजिड। या फिर आप वैसे नहीं होते होंगे तो सामने वाला वैसा रहता होगा, ठीक है, रिजिड। सो रिजिड डॉकिंग में सब चीजें रिजिड है, रिजिड मतलब कुछ भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो आप देख रहे हैं ताला दिख रहा है आपको, एक चाबी दिख रही है, इज इट पॉसिबल टू फोल्ड योर की, फोल्ड करना पॉसिबल है की को, नहीं, वो तो रिजिड रहती है। इज इट पॉसिबल टू फोल्ड योर लॉक, वो भी रिजिड है, लेकिन फिर भी लॉकिंग होता है, ताला खुलता है, मतलब इंटरेक्शन रिजिड डॉकिंग भी हम कर सकते हैं। ऑल्दो ये सबसे ज्यादा बेसिक डॉकिंग कंसिडर की जाती है आज की तारीख में, नाउ द सॉफ्टवेयर आर सो मच एडवांस कि ये रिजिड डॉकिंग बहुत आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है। तो हम रिजिड डॉकिंग के ऊपर अभी इतना ज्यादा यकीन नहीं करते, व्हाई, बिकॉज इन आवर बॉडी डू द प्रोटीन्स आर इन अ रिजिड फॉर्म, नो। क्या रिसेप्टर रिजिड रहते हैं, नो। क्या डीएनए रिजिड रहता है, नहीं। रिसेप्टर भी तो चेंज होता है ना, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, आयन फ्लो आउटफ्लो, रिसेप्टर ओपनिंग क्लोजिंग, तो क्या रिसेप्टर रिजिड रहता है, नहीं रहता है। एंजाइम तो नहीं रहते हैं, प्रोटीन्स भी नहीं रहते हैं, और ये हमारे न्यूक्लिक एसिड भी नहीं रहते, so we don't have a rigid system। जो लिगेंड रहता है कन्फर्मर, क्या वो रिजिड रहता है, नहीं, वो भी तो कन्फर्मर्स चेंज होते रहते हैं, सो वी डोंट यूज दिस सिस्टम नाउ, रिजिड डॉकिंग, ठीक है। ये हम नया अप्रोच यूज करते हैं अभी, फिर क्या बोलते हैं इसको, फ्लेक्सिबल डॉकिंग। इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ एंजाइम रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स व्हिच इज कॉल्ड एज ए इंड्यूस फिट थ्योरी। क्या बोला जाता है इसको, इंड्यूस फिट थ्योरी। एंड व्हाट इट सेज दैट, वेरी सिंपल, वही चीज जो मैंने अभी बोली, इन अ स्टैंडर्ड वर्चुअल डॉकिंग ligands are docked into the binding site of the receptor where the receptor is held rigid and ligand is free to move. However, assumption is that
रिजिड रिसेप्टर कैन गिव यू अ मिसलीडिंग रिजल्ट। अगर आप ये कंसिडर करेंगे कि रिसेप्टर रिजिड है और रिजिड रिसेप्टर के ऊपर डॉकिंग करेंगे तो आपके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, मिसलीडिंग हो सकते हैं। ऑल्दो आज की तारीख में जो यूजुअली लोग डॉक करते हैं या हम भी जो सीखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न वन ऑफ द एस्पेक्ट, हमारा जो प्रोटीन रहेगा वो रिजिड रहेगा। हम सिर्फ किसको मूव करेंगे, लिगेंड को मूव करेंगे। वी विल जनरेट डिफरेंट कन्फर्मेशंस फॉर द लिगेंड एंड विल फाइंड इंटरलॉकिंग। हमारा रिसेप्टर कैसे रहने वाला है, हमारे हम जो लर्न करने वाले उसमें रिसेप्टर कैसे रहने वाला है, रिजिड रहने वाला है। सो we are going to learn this concept where we are going to have a rigid receptor and a flexible ligand। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में भी ligands अलग अलग रहते हैं, conformers रहते हैं, वो flexible रहते हैं, they can move, they can change their rotation, they can change their orientation, they can change their angles, they can change their bonds, whatever। okay, receptor कैसा रहने वाला है, rigid। तो इस तरीके का डॉकिंग हम यूज करने वाले हैं। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है हम यूज कर सकते हैं, इसमें फ्रीली अवेलेबल है, विच इज ऑटोडॉक टूल्स। आई कैन से ऑटोडॉक में भी ऑटोडॉक प्लेन अवेलेबल रहता है 4.2, उसके बाद ऑटोडॉक वीना दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। देयर आर वेरियस एडवांस वर्जन्स ऑफ द ऑटोडॉक विच इज ऑल्सो अवेलेबल। FWA ऑटोडॉक, FWA वीना, अलग अलग लोग क्या करते हैं, बिकॉज ऑटोडॉक इज अ फ्री सॉफ्टवेयर, इट इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगर आप मास्टर हैं, आप कंप्यूटेशनल कोडिंग जानते हैं और आप अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, then you can use this Autodoc and you can develop your own advanced software। base start Autodoc से ही होगा and you can lead to some advanced software। ऐसा भी लोग करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सी बार आजकल हमें फाइल कन्वर्ट करनी होती है, वर्ड फाइल को पीडीएफ बनानी है, या वर्ड एक पीडीएफ को इमेज बनानी है, या कोई दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करनी है। तो पहले ये बहुत टेढ़ी खीर बोल सकता हो, आज से कुछ 5-10 साल पहले बहुत टेढ़ी खीर थी कि वर्ड फाइल को पीडीएफ बनानी है। मतलब उसके लिए मेरे पास एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए मेरे लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जो कि ये वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करे। बरोबर है, तो होगा। आज की तारीख में क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर, ऑनलाइन में फाइल अपलोड करते हैं, कन्वर्ट हो जाती है, होती है। ऑटोडॉक की भी ऐसे वर्जन अवेलेबल है। मतलब you don't need to install the software in your laptop PC, just go to that web server, give the input file, प्रोटीन दे दीजिए, लिगेंड दे दीजिए, ओके कुछ पैरामीटर कुछ सॉफ्टवेयर में अवेलेबल रहते हैं जहां पे आप सेटिंग कर सकते हैं, एंटर, कुछ देर के बाद रिजल्ट। दैट सिंपल नाउ द मॉलिक्यूलर डॉकिंग इज। बहुत पहले के अगर आप कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती थी डॉकिंग करने के लिए। ये सॉफ्ट आप देखेंगे तो एक एक घंटा लग जाता था डॉकिंग करने के लिए, एक मॉलिक्यूल का डॉकिंग करने के लिए एक एक घंटा लग जाता था। अभी आजकल के वेब सर्वर ऐसे है, जस्ट इनपुट दिया, 5 मिनट में रिजल्ट आउट, ठीक है ना। एडवांसेस ऐसे होते हैं, वो किसने कैसे बनाया होगा, बिकॉज इट इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आप इसको यूज करके क्या कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, है ना। और आप मानेंगे, आप देखेंगे ये जो वेबसाइट इन लोगों ने बनाई, इसके ऊपर उन लोगों ने पब्लिकेशंस किए हुए, इसके ऊपर उन्होंने पब्लिकेशंस किए कि हमने इस तरीके का एक वेबसाइट बना दिया है जहां पे जाके कोई भी ये ऑटोडॉक यूज करके डॉकिंग कर सकता है, रिजल्ट निकाल सकता है और एक्यूरेसी के साथ हमारा रिजल्ट मिलता है, उसका पब्लिकेशन है, वो भी अच्छे जर्नल्स में। आई एम नॉट गिविंग एनी सबस्टैंडर्ड क्वालिटी जर्नल, अच्छे जर्नल्स में विच इज हैविंग अ इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ 5, 7, 10, ठीक है, दैट कैन बी पॉसिबल। तो ये जस्ट स्टार्ट है यानी, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल डॉकिंग होप से आपको समझ में आया। नेक्स्ट इज अगेन एडवांस फॉर्म ऑफ अ फ्लेक्सिबल डॉकिंग विच इज कॉल्ड एज ए वन मोर वर्ड, मॉलिक्यूलर डायनामिक स्टडी। क्या दिख रहा है यहाँ पे फ्लेक्सिबल में, सभी चीजें फ्लेक्सिबल दिख रही है, मीन्स your protein is also moving, amino acids moving, bonds moving, ligands moving, सब चीजें मूविंग है, ठीक है। और इस तरीके का जो डॉकिंग होता है, ये भी डॉकिंग का ही एडवांस फॉर्म है। अब उसको डॉकिंग ना बोलते वर्ड क्या यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर डायनामिक, डायनामिक वेबसाइट, ऐसे वर्ड होते हैं ना हमारे। हमारी वेबसाइट कैसे होनी चाहिए, डायनामिक,
फोल्डेबल होनी चाहिए। वैसे ये डायनामिक मतलब क्या, सब चीज मूवेबल है। और इस स्टडी में एक्चुअली ये चेक किया जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स बना है लिगेंड का प्रोटीन के साथ, ये कितने दिन, कितने देर तक, दिन तक नहीं, कितने टाइम तक स्टेबल रहता है, कितने टाइम तक ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल रहता है। क्या ये 1 नैनो सेकेंड के लिए स्टेबल है, कि 10 नैनो सेकेंड के लिए स्टेबल है, 100 नैनो सेकेंड के लिए स्टेबल है, 300 नैनो सेकेंड के लिए स्टेबल है, क्या ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जा रहा है 5 ही सेकेंड के अंदर, ये सब चीजें चेक की जाती है। तो जो ज्यादा स्टेबल रहेगा वो लॉन्ग टर्म इफेक्टिव बनेगा, है ना, या उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन जाएंगी कि वो यस प्रोटीन एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। और जो 5 सेकेंड में छूट गया, मतलब क्या, माइट बी इट इज नॉट हैविंग दैट एबिलिटी। तो ये डायनामिक स्टडी में क्या चेक किया जाता है, इंटरलॉकिंग तो चेक किया जाता है, लेकिन और क्या चेक किया जाता है उसके साथ, टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसीलिए एडवांस है। आपको पता है 100 नैनो सेकेंड के लिए अगर मुझे स्टडी करनी है ना, ये मॉलिक्यूलर डायनामिक, विथ अवर जनरल लैपटॉप इट इज नॉट पॉसिबल। i3 मेरा है लैपटॉप, इसके साथ ये पॉसिबल नहीं है। विद i5 it is possible, but still it requires a GPU support. लैपटॉप विद जीपीयू इट इज वेरी डिफिकल्ट, कॉस्टली होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो स्टडी होती है i5 विद जीपीयू सीपी में, पीसी में बोल दूंगा, तो उसके लिए कम से कम 18 घंटे लगते हैं। यानी स्टडी है 100 नैनो सेकेंड की, ठीक है, बट इट रिक्वायर्स है नियर अबाउट 18 आवर्स 24 आवर्स टू एग्जीक्यूट द फाइनल रिजल्ट। सो दैट इज वाई ये जो स्टडी है मॉलिक्यूलर डायनामिक, ये बहुत कम जगह होती है। ठीक है, इसके लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल है, सम आर पेड सॉफ्टवेयर, but that is advanced study. So when you go for the publication based on a molecular docking, so many times it was rejected because molecular docking is just a preliminary study जहाँ पे आप इंटरलॉकिंग चेक कर रहे हैं, whereas molecular dynamic is a advanced study जहाँ पे आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि सिर्फ इंटरलॉकिंग हुआ है, ये नहीं, स्टेबल इंटरलॉकिंग हुआ है, लॉन्ग टर्म स्टेबल रहता है। 100 नैनो सेकेंड 300 नैनो सेकेंड के लिए वो इंटरलॉकिंग स्टेबल है। तो इससे पता चलता है, अगर ये पता चल गया तो वो पब्लिश होता है, नहीं तो आपका पब्लिकेशन बहुत बार क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। सो दैट इज व्हाट अबाउट द, एक मैंने जस्ट बताया, मैंने मॉलिक्यूलर डॉकिंग की क्लासिफिकेशन बताया। देयर इज ए प्रोटीन प्रोटीन डॉकिंग, वो अलग है, देयर इज एडवांस डॉकिंग, वो अलग है। ठीक है, हम उसके ऊपर डिटेल में नहीं जा रहे। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ द मॉलिक्यूलर डॉकिंग। देयर आर सो मेनी एडवांस एप्लीकेशंस। ठीक है, you can see, you can go for the heat to lead optimization, you can go for identification of the new series of a molecule, you can identify novel and potent ligands, you can discover a new target for already existing molecules, understanding the mechanism of action of ligand, molecular interactions in a various biological processes, studying the binding mode and affinity between various molecule, binding affinity predictor tool। अब नाम तो मैंने ये सब पढ़ लिया, थोड़ा सा डिस्कशन करने जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट टाइम, है ना। हीट टू लीड ऑप्टिमाइजेशन, कभी कभी क्या होता है, हीट हीट समझते हैं आपको कि एक स्ट्रक्चर है जिसका आपको पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी मिल गया। ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी मिल गई, आपने उस मॉलिक्यूल को लिया, अब चेक कर रहे हैं उसको प्रोटीन के साथ, उसका डॉकिंग कैसे होता है, उसको फिटिंग कैसे अच्छा किया जा सकता है। कभी कभी फिटिंग करते वक्त हो सकता है ये वाला पोर्शन मिस हो रहा है, अगर यहाँ पे कुछ ग्रुप अटैच कर दिए तो उसका लॉकिंग और ज्यादा टाइट हो जाएगा, इंटरेक्शन फेवर हो जाएंगे, है ना, ऐसे सब चीजें ठीक की जाती है, तो वो क्या हो जाता है, ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। बेसिक अगर आपके पास एक गोल है, गोल जाके फिट हो गया, लेकिन अगर गोल के ऊपर यहाँ पे ट्रायंगल आ गया, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, यहाँ पे ऐसा आ गया कॉर्नर्स के ऊपर, तो हो सकता है वो लॉकिंग को क्या करेगा, इफेक्टिव बना दे। ठीक है, तो दैट इज व्हाट हीट टू लीड ऑप्टिमाइजेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू सीरीज ऑफ अ मॉलिक्यूल, जैसे आपने सुना होगा 1,4 डाइहाइड्रोपाइरिडिन्स, सुना है आपने ये कैटेगरी 1,4 डाइहाइड्रोपाइरिडिन, व्हाट आर द एग्जांपल्स 1,4 डाइहाइड्रोपाइरिडिन्स, या डिल्टिजिम है, वन निफेडिपिन, निकार्डिपिन, है ना, फेलोडिपिन, ये सब क्या रहते हैं 1,4 डाइहाइड्रोपाइरिडिन्स। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस,
calcium channel blocker. So 1,4-dihydropyridines, you know they are the calcium channel blocker. Do quinazoline is also a calcium channel blocker? 1,4-dihydropyridine is calcium channel blocker. क्या क्विनाजोलिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो सकते हैं? यू हैव टू फाइंड आउट. तो क्या हम प्रैक्टिकल करें? इट इज टेक या कर सकते हैं, बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. और रिजल्ट सही आए गलत आए वी डोंट नो. तो हम बेसिकली एक चीज क्या कर सकते हैं, वी कैन डिजाइन अ क्विनाजोलिन डेरिवेटिव. 1,4-डाइहाइड्रोपाइरिडिन के अंदर पाइरिडिन को रिप्लेस करके क्विनोलिन न्यूक्लियस लगा दीजिए. वी कैन डिजाइन अ मॉलिक्यूल सिमिलर टू दैट और चेक करके देखते हैं क्या वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बनेगा. दैट कैन बी डू इन कंप्यूटर. ठीक है, दैट इज व्हाट द मॉलिक्यूलर डॉकिंग. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू सीरीज ऑफ द मॉलिक्यूल, आइडेंटिफाई नोवेल एंड पोटेंट लिगेंड्स, जैसे रेमडेसिविर की बात किया. टारगेट डिस्कवरी. अब 1,4-डाइहाइड्रोपाइरिडिन दे आर वेरी वेल नोन एज ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. क्या 1,4-डाइहाइड्रोपाइरिडिन हैज ए प्रॉपर्टी टू इनहिबिट द माओ एंजाइम? अलग ही है यहीं पे. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का माहो का कैसे चेक करेंगे? प्रैक्टिकल करना बहुत डिफिकल्ट है, फार्माकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करना, बट यू कैन डू दिस. हाउ इट इज पॉसिबल? इन सिलिको माओ एंजाइम का रिसेप्टर या प्रोटीन का स्ट्रक्चर ले लीजिए, डॉकिंग करके चेक करिए फिटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है 1,4-डाइहाइड्रोपाइरिडिन का जो स्टैंडर्ड माओ इनहिबिटर है उसके साथ कंपेयर करके देखिए, और आपको लगता है कि नहीं फिटिंग तो बहुत अच्छे से हो गया. You can propose in your article that we have performed so and so docking dynamic study of this 1,4-dihydropyridine which was initially used for this purpose, but repurposing suggests that molecular docking dynamics suggests that they have a probability to block the MAO enzyme. तो ये अगर आपने प्रूफ कर दिया by using this study तो आपका पेपर एक पब्लिश हो जाता है. हो सकता है आने वाले दिनों में आप फिर उसको लेके फार्माकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करें, और अगर वहां पे भी आपको सक्सेसफुल रिजल्ट मिल जाते हैं तो देन यू कैन प्रपोज फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स. ऐसा होता है. यू नो वेरियस ड्रग्स जैसे थैलिडोमाइड एक जमाने में बंद हो गया था, अभी वापस आया है ना, वापस आ गया. सीवियर डिसऑर्डर था उसका, वापस आ गया. कैसे वापस आया पता करिए. ठीक है, सो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्टडी, ऑल्दो ये सब चीजें यहाँ पे इस स्लाइड में बहुत अच्छे से समझाई गई है कि यू कैन गो फॉर द वर्चुअल स्क्रीनिंग. करोड़ कंपाउंड, 1 करोड़ कंपाउंड, 1 करोड़ कंपाउंड की लाइब्रेरी को लगा दो एक मॉलिक्यूल के डॉकिंग करने के लिए, एक प्रोटीन का डॉकिंग करने के लिए. कोविड आज भी बहुत बुरी बीमारी है ना, उसके लिए बहुत सारे ड्रग्स आए नहीं है, काफी लेट हो गया, लेकिन फिर भी आपको अगर ट्रायल करना है तो आप क्या कर सकते हैं, वो लाइब्रेरी को लगा दो. काय की लाइब्रेरी बोल रहा हूँ, अपने कॉलेज की किताबों की लाइब्रेरी नहीं, ड्रग कंपाउंड उसके स्ट्रक्चर्स की लाइब्रेरी रहती है, उसको लगा दो. वर्चुअल स्क्रीनिंग इसको बोलते हैं. स्क्रीनिंग क्या वो कोविड के उस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है कि नहीं, प्रोटीन को इनहिबिट कर रहा है कि नहीं, और उसमें से अगर आपको पता चलता है नहीं कुछ तो भी 100 मॉलिक्यूल है 1 करोड़ में से जिसकी अफिनिटी है, तो उसको क्या करिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए लेके जाइए, फिर क्लिनिकल ट्रायल, एंड यू विल फाइंड दैट ये हम जो बोल रहे हैं. मैंने एक स्टूडेंट को जो फाइनल ईयर में था उसको एक प्रोजेक्ट दिया था. ठीक है, विद इन दैट पीरियड यानी जब मार्च में ही उसको बाद उसको नेक्स्ट इसमें टर्म में उसको सबमिट करना था, वी फाउंड दैट देयर आर 429 मॉलिक्यूल्स व्हिच आर ऑलरेडी टेस्टेड फार्माकोलॉजिकली अगेंस्ट कोविड-19 वायरस. 429 मॉलिक्यूल सिर्फ 6 महीने के अंदर जिसको फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी चेक की गई है उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है. एंड वी यानी इतना सोचिए लोग कितने जल्दी काम करते हैं. कोविड वायरस आया, उसका एक पब्लिकेशन आ गया, चाइना ने सबसे पहले डाला कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दैट वायरस, 2 महीने के अंदर. ठीक है, पब्लिकेशन यानी ऐसे लोग काम करते हैं. ठीक है, पब्लिकेशन वो आ गया, सीक्वेंस का प्रोटीन स्ट्रक्चर डाटा में आ गया, तो उसके बाद लोगों ने रीपर्पसिंग चालू कर दिया. विद इन 2 months there are lakhs of the paper in this science library which is based on a COVID-19. अच्छे अच्छे जर्नल्स सब वो लोग कोविड के पेपर एक्सेप्ट कर रहे थे. ऐसा था कि उस वक्त किसी ने पब्लिकेशन किया, ठीक है, तो आप मानेंगे नहीं उसका पब्लिकेशन तो 99% एक्सेप्ट होने वाला है.
90% एक्सेप्ट होने वाला है, ऐसा समझ लीजिए, 99 ज्यादा बोल दिया शायद, 90% एक्सेप्ट होने वाला है अगर क्वालिटी अच्छी है लिखने की, है ना, और साइटेशंस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि 1 लाख पेपर अगर बन रहे हैं कोविड के, तो जब हम साइटेशन करते हैं ना तो वो पेपर को रेफर करेंगे ही। एक बंदे का जो साइटेशन 0 है, अब मानेंगे नहीं, 2 महीने के अंदर उसका साइटेशन 500 क्रॉस कर दिया। साइटेशन 500 क्रॉस करना मतलब वेरी डिफिकल्ट, एंड उसका एक ही पेपर 300 साइटेशन के साथ, दूसरा पेपर 200 साइटेशन के साथ, बाकी पिछले 10 साल देखोगे तो कोई साइटेशन नहीं। ये साइटेशन वर्ड जो है ये आपका क्या बनाता है, क्या बढ़ाता है बोलते हैं, एक रिसर्च प्रोफाइल बढ़ाता है। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है अपना साइटेशन यानी फेसबुक पे वगैरह डालते हैं रिसर्चर। एक मुंबई की आईसीटी की प्रोफेसर है, उनके साइटेशन 10,000 क्रॉस किए, तो शी राइट एन लिंक्डइन पेज आई थिंक और फेसबुक कि आई हैव क्रॉस 10,000 साइटेशन। तो एक क्या रहता है, रिमार्केबल अचीवमेंट रहता है। तो साइटेशन दैट इज इंपॉर्टेंट। सो ओनली पब्लिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट सेज दैट आपका पब्लिकेशन कितने लोगों ने साइट किया, यूज किया आगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। जैसे पेटेंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेटेंट कितना सोसाइटी में यूजफुल हुआ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वर्चुअल स्क्रीनिंग, पॉलीफार्माकोलॉजी, ड्रग रिपोजिशनिंग, आप सब ये बाद में पढ़ के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो दिस आर द वेरियस एडवांटेजेस एप्लीकेशंस ऑफ द मॉलिक्यूलर डॉकिंग। तो देखिए कुछ और पेपर है, स्टूटिक्स वाले भी मॉलिक्यूलर डॉकिंग करते हैं, पहले भी बताई थी ये स्लाइड। फार्माकोग्नोसी वाले जो लोग हैं तो वो लोग भी मॉलिक्यूलर डॉकिंग करते हैं। सो दिस इज द पेपर, मैंने भी कर दिया। देखो मैं फार्माकोग्नोसिस नहीं हूँ, बट आई हैव यूज्ड क्रेसा क्रिटिका टू ट्रीट अ कोविड-19, published in a Taylor and Francis having a 3.5 impact factor। तो पॉसिबल हो गया, राइट। कंप्यूटेशनल स्टडी टू फाइंड आउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो फार्माकोलॉजी वाले तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि भैया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता करना है। पॉलीफार्माकोलॉजी, ये फार्माकोलॉजी वाले बहुत यूज करते हैं कि कभी कभी जब बात करता हूँ इनसे कि भैया डिप्रेशन की स्टडी करनी है, तो लोग 10 एंजाइम के नाम बताते हैं। आप सर माओ की स्टडी करना चाहते हो, या आप टीएनएफ अल्फा करना चाहते हो, और कौन से हैं, एनएफ कापा भी करना चाहते हो, या डेल्टा रिसेप्टर, ऐसे 5-10 नाम बताते हैं। मतलब मेरे को सिर्फ डिप्रेशन स्टडी करनी है, तो ये सब मिलजुल के काम करते बोले डिप्रेशन में। तो ये कैसे पता करेंगे कौन सा रिसेप्टर को मेरा ड्रग इनिबिट करने वाला है, और मैं फिर उसको प्रैक्टिकली कौन सा परफॉर्म करूं। तो बेसिकली क्या करो, 10 मॉडल फार्माकोलॉजिकली बनाते हुए चेक ना करते हुए क्या करिए, 10 मॉडल इन सिलिको बना लीजिए। 10 मॉडल इन सिलिको बनाने के बाद पहले एनएफ कापा बी पे चेक करिए, फिर टीएनएफ अल्फा पे चेक करिए, फिर माओ पे चेक करिए, सब जगह ऐसे 5-10 पे पहले इन सिलिको चेक करिए। उसमें आपको पता चला कि ये 2 के ऊपर ये ड्रग ज्यादा इफेक्टिव है, ये 2 के ऊपर ये ज्यादा इफेक्टिव है। तो अब जब आप फार्माकोलॉजिकली एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप सिर्फ वो 2 का करिए, 10 ना करते हुए। आपका टाइम कम होगा, पैसा भी बचेगा, एनिमल की जान भी बचेगी, सही है। वन मोर पेपर, जैसे मैंने अगेन सार्स कोव-2 के ऊपर ही आप देख रहे हैं जो पब्लिश किया था, वेयर वी हैव यूटिलाइज द फ्लेवेनॉइड्स। फ्लेवेनॉइड्स चेक किया कोविड वायरस को इनहिबिट करते हैं क्या नहीं करते। वी यूज 21 फ्लेवेनॉइड्स, and we found that out of 21 routine is a very good, which is having a probability, better probability as compared to other 20, and as compared to a standard remdesivir to inhibit this SARS-CoV-2 virus. So what are the steps which are used in this paper? So first is the preparation of protein, then preparation of ligands, determining the active site of the protein। एक्चुअली डॉकिंग करना है तो पूरे प्रोटीन पे हर जगह पे करेंगे कि एक पर्टिकुलर जगह पे करेंगे, प्रोटीन इज अ बिग मॉलिक्यूल, ठीक है, हर जगह पे डॉकिंग करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट टाइम अगेन। तो एक्टिव साइट कौन सी है, तो फाइंड आउट द एक्टिव साइट एंड परफॉर्म द डॉकिंग एट एक्टिव साइट ओनली। देन वी हैव आल्सो परफॉर्म अ डायनामिक स्टडी इन दिस पेपर, एडीएमईटी स्क्रीनिंग, और फिर जाके कंक्लूजन पे आए थे हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके का एक स्टेप्स आप यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो पब्लिश योर पेपर इन द रेपुटेड जर्नल्स, ठीक है। एनी क्वेश्चंस?
जो लोग ऑनलाइन में हैं, ऑफलाइन में बैठे हुए पूछ सकते हैं. सो वी हैव अ टाइम. ठीक है. सो व्हाट वी रिक्वायर फॉर द डॉकिंग, क्या क्या लगता है हमें मॉलिक्यूलर डॉकिंग अगर करना है प्रैक्टिकली? प्रोटीन का स्ट्रक्चर, कंपाउंड यानी लिगेंड के स्ट्रक्चर्स, एक्टिव साइट कौन सी है वो पता होनी चाहिए, और सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर है हमारे पास, है ना. बहुत सारे सॉफ्टवेयर है. यू विल फाइंड more than 100 software for the molecular docking. I'm saying more than 100 software for the molecular docking. Even I have personally checked and there are more than 64 free software for the molecular docking. 64 free software for the molecular docking. कोई भी सॉफ्टवेयर आप ले सकते हैं 64 में से, कितने सारे हैं. ठीक है ना. तो बहुत आसान है. आपको तीन चीजें चाहिए, प्रोटीन चाहिए, लिगेंड चाहिए और सॉफ्टवेयर चाहिए. सो पहला काम करते हैं अभी, थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं हाँ डॉकिंग में और डिटेल में अभी, कि टारगेट सिलेक्शन कैसे करना है डॉकिंग करने के लिए. यानी प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, जो भी आपको टारगेट लेना है, प्रोटीन लेना है, जो भी टारगेट लेना है अपने डॉकिंग करने के लिए, तो वो कहाँ से लेना पता है किसी को? कहाँ से मिलता है? ऑनलाइन मिल जाता है ना. प्रोटीन, ये जो कुछ स्लाइड है मैंने इसमें ये बताया कि व्हाट आर प्रोटीन्स बेसिकली. तो प्रोटीन्स आर व्हाट, दे आर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स को आप क्लासिफाई कर सकते हैं, पोलर अमीनो एसिड, नॉन पोलर अमीनो एसिड, चार्ज पोलर अमीनो एसिड, है ना. तो यू कैन सी द कलर एंड रिस्पेक्टिव नेम ऑफ द अमीनो एसिड. इन दिस वे यू कैन क्लासिफाई योर अमीनो एसिड्स. क्यों मैं क्लासिफिकेशन के ऊपर ये बात कर रहा हूँ, पोलरिटी, कि जब आपका लिगेंड जाके बाउंड करता है एक्टिव साइट पे, तो उसके आजू बाजू में रहता क्या है? झुंड किसका बना हुआ है आजू बाजू में? अमीनो एसिड्स का. ठीक है. अगर वो अमीनो एसिड जो है सारे के सारे पोलर है, तो आपको लिगेंड कैसा चाहिए? पोलर ही चाहिए. पोलर पोलर ही इंटरैक्ट करेगा. अगर उस वक्त आपका लिगेंड नॉन पोलर रहेगा और वहां पे बिठाने की कोशिश किए तो फिट नहीं होगा, स्टेबल नहीं रहेगा. सो दैट इज व्हाई यू मस्ट नो कि वो एक्टिव साइट पे कौन से कैटेगरी का अमीनो एसिड है, whether it is the polar amino acid, non polar amino acid, charge polar, charge non polar, कौन सा है अमीनो एसिड. तो आपको पता चलेगा. सब्स्टिट्यूशन करना भी, जब हीट टू लीड मॉडिफिकेशन के लिए जाते हैं, तब भी आपको पता चलेगा कौन सा ग्रुप लगाना है, whether we have to give a NO2 group there or we have to give a Cl group there, we have to give a COH group there. ये तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के, लेकिन कौन सा देना मॉडिफिकेशन करने के लिए. तो आपको अमीनो एसिड पता रहेगा तो पता चलेगा ना कि इंटरेक्शन कौन सा बनाना है. तो दैट इज व्हाई यू मस्ट नो व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट अमीनो एसिड. अमीनो एसिड का सीक्वेंस आपको पता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है. देयर इज ए स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर रहता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर रहता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर रहता है प्रोटीन का. कौन सा प्रोटीन कैसे एग्जिस्ट करता है वी डोंट नो. एंड उससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है, देयर आर हाउ यू कैन यू नो कंफर्म कि आपका प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है कि नहीं है. सो इट इज गिवन बाय फाई एंड साई एंगल्स. प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टेबल है, ये भी तो चेक करना है, डू दिस प्रोटीन इज स्टेबल और नॉट. वो जो स्ट्रक्चर हमने लिया है वो स्टेबल है कि नहीं है. तो इट इज कंफर्म बाय विच एंगल? phi and psi angle. You can see what is a phi angle. It is a dihedral angle. दोनों ही कैसे देते हैं? These are the dihedral angles. तो C अल्फा एंड C के बीच का जो ये एंगल है वो है phi angle. एंड psi angle N C अल्फा एंड N के बीच का ये जो एंगल है इसको बोलते हैं psi angle. सो phi एंड psi angle को आप ऐसे भी देख सकते हैं न्यूमेन्स प्रोजेक्शन से कि इट इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड. C अल्फा रिप्रेजेंट द अल्फा कार्बन ऑफ अमीनो ग्रुप, अमीनो एसिड ग्रुप, है ना. और इस एंगल से देखेंगे तो आपको फाई एंगल मिलेगा, इस एंगल से देखेंगे तो साई एंगल. इट इज अ डायहाइड्रल एंगल. तो आप देख सकते हैं ये डायहाइड्रल एंगल है 100 डिग्री का. ठीक है. ये है डायहाइड्रल एंगल, यहाँ पे साई एंगल दैट इज 60 डिग्री -60. ये फाई एंड साई एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट. पता है ये किसने दिया था फाई एंड साई एंगल? इट इज नथिंग बट अ इंडियन साइंटिस्ट. यानी दुनिया को
प्रोटीन का पेप्टाइड का स्ट्रक्चर स्टेबल है या नहीं, ये बताने वाला जो साइंटिस्ट है वो हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर G.N. रामाचंद्रन. He suggested one plot that is very well known as a Ramachandran plot. And this Ramachandran plot is utilized to confirm the stability of protein. क्या ये आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टेबल है कि नहीं है? क्योंकि डॉकिंग करने से पहले ये चीज चेक की जाती है, प्रोटीन की स्टेबिलिटी. You know one term that is called as homology modeling. क्या ये homology modeling, when you don't know the ready-made structure of a protein, आप इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को इन सिलियो को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं by using a chain of amino acid. You know only the sequence of amino acid, you can use the sequence of amino acid and you can convert that sequence of amino acid and you can predict the three-dimensional structure of a protein. वो जो प्रेडिक्शन हुआ स्ट्रक्चर, उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे? रामाचंद्रन को. ठीक है, तो इन्होंने ही दुनिया को बताया रामाचंद्रन प्लॉट, और रामाचंद्रन प्लॉट आज भी यूज किया जाता है और इससे चेक किया जाता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टेबल है या क्या नहीं. कैसे दिखता है रामाचंद्रन प्लॉट? दिस इज हाउ इट लुक्स. +80 से -180 के एंगल से, ये कौन से दो एंगल्स हैं? फाई एंड साई एंगल्स. जो वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है साई एंगल, एक्स एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करता है फाई एंगल. देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है? -180 से +180, है ना, -180 से +180, बिकॉज इट इज अ डायहेड्रल एंगल, 360 रोटेशन रहता है. ठीक है, तो वो डायहेड्रल एंगल चेक किया जाता है. यहाँ पे कलर्स दिख रहे हैं, येलो कलर दिख रहा है, येलो कलर रिप्रेजेंट द अलाउड रीजन. मतलब जो भी एंगल्स हैं, जो डायहेड्रल एंगल बन रहे हैं, अगर वो येलो रीजन में आते हैं तो ये अलाउड रीजन बोला जाता है. मतलब ये चलेगा, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबल बना सकता है. लेकिन जो व्हाइट कलर का रीजन दिख रहा है ना, व्हाइट, इट इज कॉल्ड एज ए नॉट अलाउड रीजन. मतलब अगर कोई अमीनो एसिड और उसके एंगल्स व्हाइट कलर के रीजन में आ गए तो ये स्टेबिलिटी को हैम्पर्ड कर रहा है प्रोटीन के. ठीक है, तो आपको उसको या तो फिर क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा बिफोर डॉकिंग, अगर वो आपकी एक्टिव साइड का अमीनो एसिड है तो. इफ दैट अमीनो एसिड इज इन योर एक्टिव साइड, तो आपको उस अमीनो एसिड के एंगल को पहले क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा, सो दैट प्रोटीन अलाउड रीजन में आ जाए, अब तब जाके आप डॉकिंग कर सकते हैं. तो बिफोर डॉकिंग सो मेनी टाइम्स इट इज रिकमेंडेड कि आप क्या करिए? उसका स्क्रूटिनी करिए, चेक करिए, अमीनो एसिड्स के एंगल चेक करिए. हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर इन अलाउड रीजन, हाउ मेनी आर डिफरिंग फ्रॉम द अलाउड रीजन. Those differing from the allowed region, are belonging to your active site. अगर है तो चेंज करो, मॉडिफाई करो, फिर डॉकिंग करो. ठीक है, so this red color represents the beta sheet, right side. This is the left side beta handed sheet. This is right handed alpha helix. Okay, left handed alpha helix. इस तरीके की रीजन्स के नाम दिए हुए हैं. एवरी डॉट रिप्रेजेंट दिस अमीनो एसिड. ब्लैक कलर के जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दे रिप्रेजेंट द अमीनो एसिड. ओके, यू कैन सी सम ऑफ द अमीनो एसिड्स दे आर इन अ व्हाइट रीजन. ग्लाइसिन अगर व्हाइट रीजन में रहता है, नो इशू. एक आपको मैं बता दूं, एक एक्सेप्शन है, ग्लाइसिन अगर व्हाइट रीजन में रहता है, नो इशू, लेकिन दूसरे अमीनो एसिड्स नहीं रहने चाहिए. होप्स आपको वो समझ में आया. रामाचंद्रन प्लॉट हम डिटेल में नहीं जा रहे, बट यू मस्ट नो व्हाट इज रामाचंद्रन प्लॉट. नाउ अब थोड़ा सा डिटेल में आते हैं. ये आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर मैंने बोला कहां से मिलते हैं? वेबसाइट में है एक. जैसे लिगेंड्स के डाटाबेस के लिए हमारे पास में बहुत सारे डाटाबेसेस बने हुए लिगेंड के स्ट्रक्चर के लिए. जिंक डाटाबेस है, पबकेम आईडी है, केम स्पाइडर है, केमबीएल है ना, ऐसे बहुत सारे फ्री डाटाबेसेस के मैंने अभी नाम लिए. कुछ पेड डाटाबेसेस भी रहते हैं, जीवीके बायोसाइंस डाटाबेसेस. उसके कौन सी यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हर कंपनी अपना खुद का प्राइवेट डाटाबेस भी बनाती है. ठीक है ना, हर कंपनी अपना खुद का प्राइवेट डाटाबेस भी बनाती है. दे डोंट ऑलवेज यूज अ फ्री डाटाबेसेस, उनके पर्सनल डाटाबेसेस रहते. तो उसके लिगेंड्स के तो डाटाबेस हमने देख लिए. प्रोटीन का डाटाबेस, देयर आर वेरी वेल नोन फ्रीली अवेलेबल डाटाबेस इज दिस पीडीबी, प्रोटीन डाटा बैंक. क्या नाम दिया जाता है इसको? प्रोटीन डाटा बैंक. यहाँ पे आपको दुनिया के सारे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर, जिसके स्ट्रक्चर हमें वेल नोन है, ये मिल जाएंगे.
जितने दुनिया में प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स है ये हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसके अवेलेबल है, जिसके वेल नोन है। अब एक डाटा देखिए कितने प्रोटीन के स्ट्रक्चर हमें पता है। सी वी नो, ये अभी काफी पुराना है, इट इज रीच नाउ मोर देन 195, आपको रिसेंटली अभी बता दूंगा। तो इट इज मोर देन 195,000 प्रोटीन स्ट्रक्चर विच इज अवेलेबल इन पीडीबी डाटाबेस। मोर देन इतना, कितना हो गया ये, नियर अबाउट लैक्स में हो गया ना, 19 लाख, अच्छा 1,78,000 सॉरी, हाँ। तो 1,95,000 के हमारे पास में प्रोटीन स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है, दुनिया के 1,95,000 प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है। ये कितने हैं दुनिया के? इट इज सेड दैट इट इज ओनली 3 to 4%, बढ़ गया होगा थोड़ा सा तो 5%। इट इज ओनली 5% ऑफ द 5.6 मिलियन प्रोटीन सीक्वेंस विच इज अवेलेबल इन अ स्विस प्रोट और यूनिप्रोट। एक और डाटाबेस है जिसको बोला जाता है स्विस प्रोट या यूनिप्रोट, इसमें अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस रहते हैं। जितने दुनिया में प्रोटीन है ना, उसके किसके सीक्वेंस है? अमीनो एसिड के सीक्वेंस है। कहां पे अवेलेबल है, कौन से डाटाबेस में? यूनिप्रोट, और इट इज आल्सो नोन एज ए स्विस प्रोट, स्विस प्रोट। ये अकेला ऐसा डाटाबेस है जहां पे अमीनो एसिड के सीक्वेंस है, और जितने अमीनो एसिड के सीक्वेंस है उसमें से सिर्फ 5% के हमारे पास में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अवेलेबल है, प्रोटीन स्ट्रक्चर। So how much remaining? How much remaining? Near about 95%. मतलब you have a sequence of amino acid, but you don't know the structure of a 3D protein. You have a sequence of amino acid, but you don't know what? 3D structure of a protein. कितने परसेंट? 95%। यानी 1,95,000 अवेलेबल है, तो कितने अवेलेबल नहीं है? बिलियंस, करोड़ों में। अगर एक एक बंदा एक एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी अवेलेबल करेगा तो भी हमारा रिसर्च यानी काफी ज्यादा है। तो रिसर्च अपॉर्चुनिटी, कभी कभी लोग बोलते हैं एमफार्म के खास करके अभी जैसे आए हैं, क्या रिसर्च करे, है ना, प्रोजेक्ट क्या ले भैया, इतना तो इसने कर दिया, इसने ये सिंथेसिस कर दिया, उसने वो सिंथेसिस कर दिया, इसने ये ले लिया, उसने वो ले लिया, इसने इसकी फार्माकोलॉजी, अब मैं क्या करूं, कुछ तो नहीं है करने के लिए। तो भैया देखो ये तेरे पास इतना अवेलेबल, अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी है, मेथड्स भी हैं जिससे आप वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। करिए, ये दुनिया को फायदा होगा, ठीक है ना। कौन सी मेथड से जिससे ये किया जा सकता है? तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एनएमआर एंड क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, these are the methods which is used for the protein structure determination। ठीक है, इसमें से एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो हम ज्यादा प्रीफर करते हैं यूज करने के लिए, डॉकिंग करने के लिए, बट एनएमआर एंड क्रायो ईएम के भी किए जा सकते हैं। इनिशियली व्हेन द कोविड अराइजेस, उस वक्त एक्सरे स्ट्रक्चर नहीं था कोविड प्रोटीन का, एम्प्रो का, ठीक है, उस वक्त फिर क्रायो ईएम टेक्निक का स्ट्रक्चर था, उसको यूज करते थे। और आप देखिए इससे रिलेटेड प्रोटीन्स भी मिल जाते हैं बहुत सारे, यानी इसमें 1,95,000 पता है कि आपको कॉम्बिनेशंस भी मिल जाएंगे, यानी एक ही स्ट्रक्चर 10 बार मिलेगा। और दुनिया के अगर देखेंगे तो इट इज वेरी लेस, जिसके सीक्वेंस ही नहीं पता, है ना। दुनिया में अभी जैसे एक नया आर्टिकल आया था जेली फिश के बारे में, भैया जेली फिश अमर है ऐसा बोल, आया था ऐसा एक आर्टिकल, एक पर्टिकुलर स्ट्रेन है जेली फिश की जो कि अमर है, कभी मर नहीं रही है, बूढ़ी होने के बाद फिर से जवान। तो न्यूज़पेपर में हर जगह पे एक ऐसा आर्टिकल, इंसान भी अमर हो सकता है, वैज्ञानिकों ने खोजा ऐसा तरीका। आर्टिकल पढ़ते तो ऐसा पूरा पता चलता है, एक इगरनेस रहता है, हाँ भैया कैसे वापस आ सकते हैं जवानी में, देखते तो देखते हैं, ऐसे तो नहीं मिलता है ना अपने को मौका। एनीवे, तो पीडीबी डाटा बैंक जहां से आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी और कुछ डाटा बैंक है, जैसे बायोलॉजिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस डाटा बैंक है, प्रोटीन डाटा बैंक जापान का है, प्रोटीन डाटा बैंक यूरोप का है। यहाँ पे भी कुछ प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स, आपको बहुत सारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर मिलते हैं, कुछ नहीं, वहां से भी मिल सकता है, कभी कभी यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ शायद मिल जाए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है।
उसके बाद कौन सा सिलेक्ट करना, ये सब काफी और लंबा है, मैं आपको एक डेमो बता देता हूँ. सो वी आर नाउ रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. तो जैसे पीडीबी गूगल में जैसे ऐड किया, ठीक है, तो वेरी फर्स्ट वेबसाइट यू कैन सी इट इज RCSB PDB, है ना. मैंने बोला ना 195 पहुंच गया है, दिख रहा है ये आंकड़ा यहाँ पे. आ गया, ये दिख रहा है 195 325. उस वक्त मैंने जब लिया था वो 178 था. ये हमेशा डाटा बैंक में डाटा क्या होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है. ठीक है, और यहाँ पे सर्च बटन है, आप कुछ भी डालिए उससे रिलेटेड सर्च हो जाएगा. जैसे COVID-19 प्रोटीएस एंजाइम, है ना. तो वेरी फर्स्ट आप देख सकते हैं उसके अलग अलग भी है, RDRP एंजाइम भी रहता है. तो ये देखो पहला एक मिल रहा है यहाँ पे, SARS-CoV-2 मेन प्रोटीज इन कोवलेंट कॉम्प्लेक्स विद पायरिडीन. इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाता है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. जस्ट क्लिक करके ओपन किया, इसका डिटेल पढ़ेंगे तो ये कौन से हाइड्रोलेज एंजाइम कैटेगरी में कौन से ऑर्गेनिज्म से निकाला गया है. ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड वायरस है. इस्चेरिशिया कोलाई यूज किया गया है, म्यूटेशन इस स्ट्रक्चर में नहीं है. कौन से ऑथर्स ने निकाला है, तो दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑथर्स यू कैन सी, जिन लोगों ने ये रिसर्च करके प्रोटीन का स्ट्रक्चर दुनिया को बताया है कि कैसा है ये स्ट्रक्चर. उसकी ये जो डायग्राम रहता है, चार्ट रहता है, ये रिप्रेजेंट करता है वो स्ट्रक्चर कितना अच्छा है यानी डॉकिंग करने के लिए. तो ब्लू जोन इज आर द गुड गुड रीजन, व्हाइट यानी मिडल है, रेड मतलब बैड है. तो ये जो भी पैरामीटर्स आप देख रहे हैं अगर ब्लू जोन में है मतलब उसका स्टेटिस्टिकल क्वालिटी अच्छा है, और रेड रीजन में जो जा रहा है वो उसका स्टेटिस्टिकल क्वालिटी खराब है. रिजोल्यूशन, हम बोलते हैं ना हमारा कैमरा का जो पिक्चर का रिजोल्यूशन रहता है वो ज्यादा रहा तो ज्यादा अच्छा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, रिजोल्यूशन अगर कम रहा प्रोटीन का स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा. तो यू कैन सी इट इज ओनली 1.30. कौन सी मेथड से इन्होंने ये स्ट्रक्चर किया है, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से किया हुआ है ना. इवन इंपॉर्टेंस ऑफ दिस आर फ्री वैल्यू, इस रिसर्च पेपर को आपको देखना है तो आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा जिसने ये पेपर पब्लिश किया है और प्रोटीन का स्ट्रक्चर दुनिया को बताया है, उसका रिसर्च पेपर उसने कैसे किया होगा ना, ईगरनेस कैसे किया, तो आप इस रिसर्च पेपर को देख सकते हैं. और भी है इसमें, ए चेन है, सिंगल चेन है विथ 305 सीक्वेंस लेंथ, मतलब 305 अमीनो एसिड का सीक्वेंस है. ठीक है, इनहिबिटर है एक ऑलरेडी अवेलेबल इनहिबिटर, तो ये वाला इनहिबिटर है जो इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अवेलेबल है. 7AEH, दिस इज ए लिगेंड जो बाउंड लिगेंड है, मैंने उस तभी डायग्राम में बताया, एक रेड कलर का बाउंड लिगेंड है, तो इट इज हैविंग अ बाउंड लिगेंड. तो आपको डॉकिंग करना है तो पहले बाउंड लिगेंड को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, फिर डॉकिंग करना पड़ता है. एंड अगेन सर्टेन स्टेटिस्टिकल क्वालिटी, आप इसको 3D में भी चेक कर सकते हैं ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर को. क्लिक करेंगे, आप एक्सप्लोर करिए हर चीज को, बट दिस इज दैट वेबसाइट. अब ये इसको आप डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड फाइल का ऑप्शन है, जहां पे हम पीडीबी फॉर्मेट डाउनलोड करते हैं फॉर द डॉकिंग. फास्टा, ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस आपको डाउनलोड करना है तो फास्टा सीक्वेंस डाउनलोड करिए. ठीक है, वैलिडेशन चेक करना है या बाकी जो कुछ परफॉर्म करने आपको चीजें, तो उसके अकॉर्डिंगली वो फाइल डाउनलोड करिए. डॉकिंग के लिए क्या डाउनलोड करना है, पीडीबी फाइल फॉर्मेट डाउनलोड करना है. ठीक है, पीडीबी फॉर्मेट, सिंपल पीडीबी फॉर्मेट वाली फाइल, नॉट विथ GZ. ठीक है, आप 3D स्ट्रक्चर देख सकते हैं क्लिक करने पे, इट विल टेक अ टाइम. तो ये जो स्लाइड है फिर ये रिप्रेजेंट करता है कौन सा प्रोटीन डाउनलोड करना चाहिए. यू मस्ट डाउनलोड प्रोटीन which is either from the human musculus organism. It should be natural, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए. डिपेंड करता है आप कौन सी स्टडी करते हैं, तो ऑन द बेसिस एक्टिव या इनएक्टिव प्रोटीन डाउनलोड कर सकते हैं. एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक वाला प्रोटीन ज्यादा सिलेक्ट किया जाता है डॉकिंग करने के लिए. इनहिबिटर बाउंड हो तो ज्यादा अच्छी बात है, वाई बिकॉज दे रिप्रेजेंट द एक्टिव साइट, तो हमें एक्टिव साइट ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, वी नो नाउ एक्टिव साइट जहां पे बाउंड है लिगेंड. Or the resolution, if it is less than 2 it is excellent, and if it is going beyond 3.5 poor, you will not get a good docking results. ठीक है, this is how the PDB file actually looks like when you go in detail to view the PDB file.
और प्रिपरेशन जब हम एक्चुअल परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकल, तो आप देखेंगे जब पीडीबी डाउनलोड हो जाती है उसके बाद भी ये सारी स्टेप्स हमें परफॉर्म करनी पड़ती है, तब जाके डॉकिंग होता है। ठीक है, so that's all. You can go to download these two software. One is the PyMol that is used for the visualization, and second UCSF Chimera that is also useful in next lecture for the molecular docking. So मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अच्छा, एक लास्ट चीज है एक्टिव साइट। यू नो एक्टिव साइट समझ में आई ना? तो एक्टिव साइट के अलावा भी कुछ साइट्स रहती है विच यू नो, अलोस्टेरिक साइट एंड क्रिप्टिक साइट। व्हाट इज अलोस्टेरिक साइट? कि एक्टिव साइट पे जाके बाइंड नहीं कर रहे, हम दूसरी साइट पे जाके बाइंड कर रहे, लेकिन उसकी वजह से एक्टिव साइट बंद हो गई, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा? इफेक्ट नहीं होगा। तो those side are called as what? Allosteric side. क्रिप्टिक साइड, कभी कभी प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि कुछ जगह ना छुपी हुई रहती है, वो दिखती नहीं है, तो दो साइड्स आर कॉल्ड एज क्रिप्टिक साइड। क्रिप्टिक का मतलब होता है हिडन। क्या होता है? हिडन। तो आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिससे आप क्या कर सकते हैं, एक्टिव साइट फाइंड आउट भी कर सकते हैं। इफ यू डोंट हैव अ प्रोटीन विद बाउंड लिगेंड, तो फिर क्या करेंगे? पूरी जगह पे डॉकिंग करेंगे क्या? नहीं, यू हैव अ सॉफ्टवेयर जो आपको क्या करके देगा? एक्टिव साइट फाइंड आउट करके देगा। वेरी सिंपल, सी कास्ट पी करके एक सॉफ्टवेयर आता है, कास्ट पी करके आता है, इसकी लिंक यहाँ पे दी हुई है, वो आप देख सकते हैं। क्रिप्टिक साइट फाइंड आउट करने के लिए क्रिप्टो साइट करके सॉफ्टवेयर आता है, इससे आप क्रिप्टिक साइट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द प्रोटीन। नेक्स्ट टाइम विल सी लिगेंड प्रिपरेशन एंड ऑल। ओके, ये जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट वी विल हैव इन सम बिटवीन वर्किंग डेज, तो सैटरडे के पहले भी हम कभी एक दिन लेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन?